السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 60، باب الاقصیۃ والخمائس، کمبلوں اور چادروں کا بیان۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو گزشتہ سبق سمجھ آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اور آپ سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیجئے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ جی کتابیں کھول لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الاقصیۃ والخمائس، کمبلوں اور چادروں کا بیان۔ وعبداللہ بن عباس ان عائشہ وعبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال لما نزل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتفق یطرح خمیصۃ له علی وجہہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مرض الوفات طاری ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کو اپنے چہرہ مبارک پر ڈال لیتے تھے، پھر جب جی گھبراتا گرمی محسوس ہوتی تو اپنا چہرہ کھول دیتے۔ فَإِذَا اغتم کشف، اغتم کا معنی تھا جب گرمی محسوس ہوتی، آپ تنگ ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے سے چادر ہٹا دیتے۔ کشفا عن وجہہ، آپ علیہ السلام اپنے چہرے سے اس کو ہٹا دیتے تھے۔ فقال وهو كذلك، تو حضرات فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے رہے۔ اور اس کے بعد فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت بھیجے۔ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی قبور کو مسجدیں یعنی سجدہ گاہ بنا لیا۔ یحذر ما صنعوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل سے مسلمانوں کو ڈرایا کہ کہیں مسلمان بھی کہیں اس عمل میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو اس لیے کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا کہ یہ عبادت کی جگہ ہے۔ ان عائشہ قالت صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی خمیصۃ لها اعلام، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ایک ایسی چادر میں جس پر نقش و نگار بنے ہوئے تھے، اور اس اوڑھ کر نماز پڑھی۔ فنظر الی اعلامها نظرۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نشان پر ایک نظر پڑی۔ فلما سلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو آپ قال اذهبوا بقمیصی، میری اس چادر کو لے جاؤ، هذه الی ابی جہم، یہ میری چادر ابو جہم کے پاس واپس لوٹا دو۔ فإنها الہتنی آنفا عن صلاتی، اس نے مجھے ابھی میری نماز، آنفا کا معنی ابھی، الہتنی مشغول کر دینا، میری توجہ کو اس طرح متوجہ کر دینا۔ واتونی بانبجانیۃ ابی جہم بن حذیفہ بن غانم بن بنی عدی بن کعب، تو مجھے یہ چادر یہ اس کو دے دو، اور اس کے بدلے میں مجھے ابو جہم حذیفہ بن غانم کے جو بیٹے تھے جو بنی عدی بن کعب کے قبیلے سے تھے، ان سے وہ ایک سادہ چادر لے آؤ۔ انجوانیہ یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے۔ تو انجوانیہ جو چادر علاقے کی چادر ہوتی تھی وہ سادہ چادر ہوتی تھی، اس پہ نقش و نگار نہیں بنے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چادر میرے پاس لے آئیں۔ قال اخرجت الینا عائشۃ کساء وازارا غلیظا فقالت قبض روح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ہذین، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک چادر اور ایک ازار موٹے لے کر ہمارے سامنے ہمیں دکھائے اور ہمارے سامنے نکالے اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ان دو کپڑوں میں قبض ہوئی تھی، یعنی جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک قبض ہوئی تو آپ نے اوپر یہ دو چادریں تھیں۔ باب اشتمال السما، سما کے استعمال کرنے کا بیان، کپڑے کو سما کی شکل میں استعمال کا بیان۔ اشتمال سما سے کیا مراد ہے؟ اس سے مطلب یہ ہے کہ آدمی ایک کپڑے کو اپنے جسم پر اس طرح لپیٹ لے کہ کسی طرف سے کھلا نہ رہے، ہاتھ پاؤں بھی اس کے اندر بند ہو جائیں اور کپڑا مکمل طور پر اس پر گرد پر لپیٹا ہوا ہو۔ جیسے ہم سردیوں میں چادر اوڑھتے ہیں یا عورتیں چادر اوڑھتی ہیں کہ اپنے بازو بھی اسی کے اندر کر لیتی ہیں، اور اس کے اگر 2-3 بال اس طرح دے دیے جائیں کہ وہ کپڑا مکمل لپٹ جائے جس سے حرکت میں بھی خطرہ ہو اور نقل و حرکت زیادہ نہ ہو سکتی ہو، تو گویا کہ اس پتھر سے مشابہت تھی جس کو صخرۃ السما کہتے ہیں۔ وہ پتھر بھی بالکل گول ہوتا ہے اور اس میں کوئی شگاف نہیں ہوتا، یکساں اور ہموار ہوتا ہے، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کپڑے کو بالکل گولائی میں اوڑھ لینا اس کا بیان ہے۔
फरमाया कि अन खफ्स इब्न आसिम अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु क़ाल नहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन मुलामसती वल मुनाबज़ती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलामसा और मुनाबज़ा से मना फरमाया है। ये मुलामसा और मुनाबज़ा ये दोनों बै की अक़साम हैं। मुलामसा ये है कि आदमी, ये कोई दुकानदार ये कहे कि तुम मसलन इस ज़माना जाहिलियत की ये दोनों बै हैं। आजकल अगर इसकी कोई मिसाल देखनी हो तो इसको यूँ कहा जा सकता है कि तुम आंखें बंद करके किसी कपड़े पे हाथ रखो, तो वो जिस कपड़े पे तुम्हारा हाथ छू लिया वो तुम 2000 रुपये का रख लेना। इसको लुम्स से कहते हैं, इसको तुम्हारा जिस कपड़े को हाथ छू जाए। और मुनावज़ा नबज़ से है, दूर खड़े हो जाते थे और तीर या कोई चीज़ उसको मारते थे और कहते थे जिस पे तुम्हारा निशाना लग जाएगा तो वो कपड़ा तुम्हारा है। उसमें कुछ हल्के कपड़े भी होते थे, कुछ अच्छे कपड़े भी होते थे। तो मुलामसा और मुनावज़ा से मना फरमाया है। इन दोनों बियू की इक़साम आप हज़रात किताबुल बियू में पढ़ेंगे। व अन सलातैनी, और इन दो नमाज़ों से मना किया, बाद अल-फ़ज्र हत्ता यर्तफ़िय शम्स, फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद सूरज के तुलू होने तक, व बाद अल-असर हत्ता तग़ीब अश-शम्स, और असर की नमाज़ पढ़ने के बाद सूरज के ग़ुरूब होने तक। व अन यहतबिय बिस्सौबिल वाहिद लैसा अला फ़रजिही मिन्हु शैउन, और कपड़े को एक ही कपड़े में अपने आप को इस तरह लपेट लेना कि इंसान की शर्म का कोई चीज़ ना हो उसमें से, बैनहु व बैन समा, उसके और आसमान के दरमियान, व अन यज्तमिल समा, और कपड़े को इस्तेमाल यानी इस्तेमाल समा से भी मना फरमाया है। यानी कपड़े को इस तरीके से लपेटना कि जब आदमी सजदे में जाए तो वो कपड़ा खुल जाए और इंसान का सतर ज़ाहिर हो जाए, तो इससे भी आप अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया है। अब यहाँ इस रवायत में मुलामसा और मुनावज़ा की कुछ ना कुछ तफसील भी आ रही है। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन लुब्सतैन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो तरीके से पहनने से मना किया है। व अन बैअतैन, और दो बै से मना फरमाया। अनिल मुलामसती वल मुनावज़ा मुलामसा और मुनावज़ा से मना फरमाया। बै में मुलामसा ये लमस रजुल सौबल आखर, आदमी दूसरे के कपड़े को छूता है, आखर बियदी ही हाथ के साथ, बिल्लैली और बिन्नहार, रात को या दिन को। रात की क्या इस वजह से लगाई कि रात को चूँकि कपड़े नज़र नहीं आ रहे होते, कुछ अच्छे कपड़े भी रखते देते थे, कुछ ख़राब भी रख देते थे, तो जिसको छू लेता उसको वो कपड़ा लेना पड़ता। दिन को अगर ये होता था तो रोशनी में तो ज़ाहिर बात है आदमी को पता चल जाता है कि ये कपड़ा अच्छा है या ये कपड़ा ख़राब है, तो इसलिए आंखें बंद करके अगर देखना पड़ेगा। वला युकल्लिबु इल्ला बिज़ालिका, या दूसरा ये कि वो कपड़ा दिन के वक्त अगर पैक करनी है तो वो कपड़ा लिपटा हुआ होता था, तो ये शर्त लगाते थे, ला युकल्लिबु, इस कपड़े को तुम उलट पुलट करके नहीं देख सकते मगर सिर्फ एक ही मरतबा, यानी एक ही मरतबा इस कपड़े को उलट पुलट करके देख सकते हो, अंदर से देख सकते हो, वरना फिर नहीं देख सकते। इसको बै मुलामसा कहते हैं। वल मुनाबज़ाति फिल बै, और मुनावज़ा ये है कि यम बिज़र रजुल इला रजुल बिसौबिही, कि एक आदमी दूसरे की तरफ अपना कपड़ा फेंकेगा, व यम बजुल आखर सौबहू, और दूसरा आदमी पहले की तरफ अपना कपड़ा फेंकेगा, व यकून ज़ालिका बैहुमा अन गैरि नज़री, और ये बै भी होगी, ये भी बगैर देखे होती है, वला तराजिन, और बगैर रज़ा के होती है। इस वजह से इन दोनों व्यू से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दोनों व्यू से मना फरमाया है क्योंकि इन दोनों के अंदर झगड़े का अंदेशा होता है, और दूसरा ये कि इंसान ने वो चीज़ भी देखी हुई नहीं होती। वल्लुब्सतान, और दो किस्म के पहनने से मना फरमाया है। इस्तेमालुस्समा, और वस्समाउ अन यजअल सौब वला अहद आतिकैहि, और समा ये है कि आदमी कपड़ा एक कंधे पर रखे, फ़यब्दु अहदु शिक्कैहि लैसा अलैहि सौबुन, और उसको दूसरे की तरफ इस तरह खींच के ले जाए, यानी दूसरे कंधे पर या दूसरे कंधे की तरफ इस तरह ले जाए कि एक कपड़ा यानी एक चादर अपने एक कंधे से इस तरह डाले कि दूसरे किनारे से इंसान के सतर दूसरे किनारे से इंसान का सतर खुल जाए, तो इस पर कोई कपड़ा ना हो। बिलफर्ज एक कपड़ा पूरे इंसान के इर्द गिर्द लिपटा हुआ है, जैसे चादर है, अंदर कपड़े ना पहने हुए हों, तो ज़ाहिर बात है अगर चादर खुल गई या चादर का एक सिरा लूज़ हो गया, ढीला हो जाए, तो वो सारा ही चादर गिर जाएगी, और उसके अंदर कोई ऐसे कपड़े ना हों तो इससे सतर खुलने का ख़तरा होता है। यब्दु अहदु शिक्कैहि लैसा अलैहि सौबुन, के वो एक ही कपड़े से अपने आप को लपेटे कि उस पर कोई और कपड़ा ना हो। वल्लुब्सुल उखरा, और दूसरा पहनना यह है इहतबाउहु बिसौबिही, अब एक ही कपड़े के साथ एहतबा करना। वहुवा जालिसुन लैसा अला फर्जिही मिन्हु शैउन, वो इस तरीके से कपड़े बैठ जाए कि इंसान का सतर जो है खुल जाए। उसका तरीकाकार ये है
کہ انسان اپنے یعنی زمین پر بیٹھ جائے، کہ انسان جیسے تہمت باندھتا ہے اس طریقے سے تہمت باندھے اور اپنے دونوں کیا نام ہے دونوں زمین پر بیٹھ کر دونوں گھٹنے اوپر کھڑے کر کے ان کو ہاتھوں کے ساتھ باندھ لے۔ تو اس طریقے سے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جس وقت انسان اس طریقے سے بیٹھے گا اور اس لنگی جو پہنی ہوگی تو اس سے اس کا سطر ظاہر ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے بھی آپ علیہ السلام نے کپڑا پہننے سے منع فرمایا۔ اگر لنگی پہننی ہے تو پھر اگر بیٹھا ہے تو پھر بیٹھنے سے احتیاط کرے۔ باب الاحتباء فی ثوب واحد، ایک ہی کپڑے میں احتباء کرنا، لپٹنا، اپنے پورے جسم کو ایک ہی کپڑے میں لپیٹ لینا، اس کا بیان۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لبستین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طریقے سے کپڑا پہننے سے منع فرمایا۔ ان یحتبی الرجل فی ثوب واحد، کہ انسان پورے کا پورا ایک ہی کپڑے میں لپٹا ہوا ہو، لیس علی فرجہ منہ شیء، اور اس کپڑے کا کوئی حصہ علادہ سے اس کے سطر پہ نہ ہو۔ شرمگاہ کو مراد ہوتی ہے، فرج سطر کو کہتے ہیں۔ وَأَن يَشْتَمِلَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ، اور ایک ہی کپڑے سے اس نے اپنے آپ کو لپیٹا ہوا ہو، اور لَيْسَ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ، اور اس کا کوئی ایک طرف اس کے دونوں کناروں میں سے کوئی ایک طرف اس پر نہ ہو۔ وَأَن مُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَزَةِ، اور ملامسہ اور منابزہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن اشتعال، یہ وہی روایت ہے۔ باب الخمیسۃ السوداء، سیاہ رنگ کی چادر لینے کا بیان۔ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بثياب فيها خمیسۃ سوداء صغیرۃ فقال من ترون ان نکسو هذه، اتي النبی صلی اللہ علیہ وسلم بثياب فيها خمیسۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کپڑے آئے اور اس میں سے ایک چھوٹی سی چادر بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کا کیا خیال ہے کہ میں یہ چھوٹی چادر کسے اوڑھاؤں، کسے پہناؤں؟ من ترون ان نکسو هذه، فسکت القوم، آپ لوگ خاموش ہو گئے۔ فقال ایتونی بأم خالد، یہ ام خالد کو دے دو۔ اوتي بها تحمل فاخذ الخمیسۃ بيده فالبسها، تو حضرت ام خالد کو میرے پاس لاؤ، چنانچہ ام خالد کو گود میں اٹھا کر لایا گیا، کیونکہ ام خالد اس وقت چھوٹی تھی، بچی تھی، ویسے ان کا نام ام خالد کنیت پڑ گئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہاتھ میں لی اور انہیں پہنا دی اور پھر برکت کی دعا دی۔ فاخذ الخمیسۃ بيده فالبسها قال ابلی واخلقی، تو اس کو بوسیدہ کرے اور اس کو تو پہنے۔ یہ جو کپڑا پہننے کی دعا ہے، بوسیدہ پرانا کرے اور بوسیدہ کرے۔ اس چادر میں سبز نقش و نگار تھے۔ پھر فرمایا اے ام خالد، یہ عمدہ ہے، اچھا ہے، اور ثناء حبشی زبان میں اچھائی اور خوبصورتی کو کہتے ہیں۔ کان فیہا علم اخضر، اس میں سبز رنگ کے نشان تھے، اور اصفر یا زرد رنگ کے، اور اس کے فرمایا یا ام خالد ھذا ثناء، یہ بہت بہترین چادر ہے۔ وثناء بالحبشیۃ، یہ ثناء حبشی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بہت عمدہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ رنگ کا کپڑا پہننا بھی ثابت ہے اور پہنانا بھی ثابت ہے، ممانعت نہیں ہے۔ لما ولدت ام سلیم قالت لی یا انس انظر ھذا الغلام فلا یصیبن شیئا حتی تغدو بہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحنکہ، فرماتے ہیں حضرت ام سلیم فرماتی ہیں کہ جب حضرت ام سلیم کے ہاں ولادت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ میری والدہ ام سلیم نے مجھ سے کہا کہ انس اس بچے کو دیکھتے رہو، اس بچے کے پیٹ میں کچھ نہ جائے یہاں تک کہ حتی تغدو الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا جائے اور آپ علیہ السلام سے اس کی تحنیک کروائی جائے۔ تحنیک کا تفصیل بھی پیچھے گزر چکی ہے۔ چھوٹے بچے، نومولود بچے کے منہ میں جو پہلی سب سے چیز جاتی ہے وہ اس کے بارے میں آپ علیہ السلام کا کا سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یا کسی بھی بڑے آدمی کے سے کھجور چبا کے رکھ دی جائے اور اس کا تھوڑا سا حصہ اس بچے کے منہ میں لگایا جائے، اسے تحنیک کہتے ہیں۔ فغدوت بہ، تو میں اس کو لے کر گیا، فاذا ہوا فی حائط وعلیہ خمیصۃ حریصیۃ وہو یسم الزہر الذی قدم علیہ فی الفتح، تو جب صبح کو میں اس بچے کو آپ علیہ السلام کی خدمت پہ لے کر گیا تو آپ علیہ السلام ایک باغ میں تھے اور آپ کے جسم پر ایک بنی حریص کی بنی ہوئی چادر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کو داغ رہے تھے تاکہ دوسروں سے ممتاز ہو جائیں، اور یہ فتح مکہ کے زمانے کے پاس کا واقعہ ہے۔ فَهُوَ يَسُمُّ الزَّهْرَ، زہر سواری کو کہتے ہیں، الَّذِي قَدَّمَ عَلَيْهِ فِي الْفَتْحِ، جو کہ فتح مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قدم علیہ فی
फिल फतह, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़तह मक्का से वापसी के वक़्त का वाक़या है। बाबु सियाबिल खुज़र, खुज़र कहते हैं सब्ज़ रंग के कपड़ों का बयान। क़ालत आयशतु व अलैहि ख़िमारुन अख़ज़रु, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि दरा हाल के हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सब्ज़ रंग की चादर ओढ़ी थी। फ़शक़त इलैहा व अरतहा खुज़रतन बिजरदिहा, फरमाती हैं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि वो खातून जिसने सब्ज़ रंग की ओढ़नी पहनी हुई थी, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से अपने शौहर अब्दुर्रहमान बिन ज़ुबैर की शिकायत लेकर आईं और उसने अपने जिस्म पर चोट यानी के सब्ज़ निशान हज़रत आयशा को दिखाए। और फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो इकरमा कहते हैं औरतों का कायदा ये था कि औरतें एक दूसरे की मदद करती थीं। तो फ़लम्मा जाअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वन्निसाउ यंसुरु बाज़ुहुन्ना बाज़न, औरतें एक दूसरे की मदद करती थी। क़ालत आयशा मा रअयतु मिस्ल मा युल्किल मुमिनातु जल्दुहा अशद्दु खुज़रतन मिन सौबिहा। तो हज़रत आयशा फरमाती हैं कि हज़रत आयशा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने अर्ज़ किया कि किसी मोमिन औरत का इससे बुरा हाल मैंने नहीं देखा कि उसका जिस्म उसकी ओढ़नी से ज़्यादा सब्ज़ हो रहा था। यानी मतलब ये था कि उसने सब्ज़ रंग के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसके खामिद ने जो उसको तकलीफ़ दी और उसको ज़रब लगाई थी, मारा था, उस मार की वजह से उसके जिस्म पर जो सब्ज़ रंग था वो उसके कपड़ों से ज़्यादा सब्ज़ था। तो इस तमीमा को मैंने देखा, किसी और मुसलमान औरत को इससे ज़्यादा तकलीफ़ मैंने नहीं देखा। तो समिया कद अतत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जल्दुहा अशद्दु खुज़रतन मिन सौबिहा, उसकी जिल्द उसके कपड़े से ज़्यादा सब्ज़ थी। क़ाल व समिया, रावी कहते हैं आप अलैहि सल्लम सुना अन्नहा कद अतत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व जाअ व माहु इब्नानि लहु मिन गैरिहा। तो आप इकरमा बयान करते हैं उसने जब आप शौहर अब्दुर्रहमान को सुना कि उसकी बीवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई है, तो अब्दुर्रहमान भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उनके साथ उनके दो बेटे थे जो उसकी दूसरी बीवी थे। तो उन्होंने कहा क़ालत वल्लाहि मा ली इलैहि मिन ज़म्बिन इल्ला इन्नमा माहु लैसा बिअग़ना अन्नी मिन हाज़िही। तो जो दूसरी बीवी थे रफ़ा की बीवी ने कहा कि वल्लाहि इनका और कोई गुनाह नहीं है, यानी मुझसे इनसे और कोई शिकायत नहीं, मगर इनके साथ इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है जिससे मेरा कुछ नहीं होता। और उस औरत ने अपने कपड़ा हाशिया पकड़कर हज़रत अब्दुर्रहमान की उसकी कमज़ोरी का बताया। इल्ला अन्ना मा माहु लैसा बिअग़ना अन्नी मिन हाज़ा, यानी इनके साथ इससे ज़्यादा कुछ नहीं कि ये मुझे मुतमईन कर सकें। व अख़ज़त हुदबतन, और कपड़े का किनारा पकड़ा मिन सौबिहा, फ़क़ाल, और कहा फ़क़ज़बत वल्लाहि या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल ये झूठ बोल रही है। मतलब ये था कि अल्लाह के रसूल ये सोबत नहीं कर सकते, अपनी बीवी से मुलाकात सोबत यानी जिमा नहीं कर सकते, और इनका जो तनाज़ु है वो ऐसा है जैसा कि ये कपड़ा है, यानी इसमें सख्ती नहीं है, तो इस वजह से अल्लाह के रसूल ये इस काबिल नहीं है, तो नामर्दगी है यानी। तो इस वजह से आपने इनके साथ जो सलूक कर रहे हैं यानी ये नामर्द हैं, तो उस पर हज़रत अब्दुर्रहमान ने कहा कि ये झूठ बोल रही है। अल्लाह के इन्नी लअनफुज़ुहा नक्ज़ल अदीम, अल्लाह के रसूल मैं इसको चमड़े की तरह हरकत देता हूँ, यानी जिस तरह चमड़े को दागते हैं और पूरे चमड़े को हिलाते हैं, तो इस तरीके से इसको हरकत देता हूँ, ये झूठ बोल रही है। तो इस पर यानी इससे मुराद इससे जो इन्होंने ये कहा ना नक्ज़ल अदीम, जैसे चमड़ा को रगड़ा जाता है यानी पूरी कुव्वत हासिल होती है। वलाकिन्नहा नाशिज़ुन तुरीदु रिफ़ा, लेकिन ये नाफिज़ा है, नाफरमान है और रुफ़ा को पसंद करती है। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इन कान ज़ालिका लम तहिल्ली लहू औ लम तुस्लिही लहू हत्ता तज़ूक़ मिन असीलतिका। तो आपने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये बात है कि अब्दुर्रहमान ने तुझसे दुखूल नहीं किया तो फिर रफ़ा के लिए हलाल नहीं हो सकती। यहाँ तक रावी को शक है कि आपने फरमाया कि रफ़ा के पास जाने के काबिल नहीं, यहाँ तक कि अब्दुर्रहमान तेरे मज़ा चख ले। तो फ़क़ाला अब सिर माहु इब्नैनि लहू, अब सिर, तो उस पर अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु के फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुर्रहमान के साथ अब्दुर्रहमान के दो लड़के देखे तो फरमाया ये सब तेरे हैं? तो उन्होंने कहा जी हाँ। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरत से फरमाया तू कहती है जो कहती है कि अब्दुर्रहमान नामर्द है, तो अल्लाह की कसम ये बच्चे अब्दुर्रहमान के इससे भी ज़्यादा मुशाबिह हैं जैसा
जैसा कौवा कौवे के मुशाबे होता है। फ़वल्लाहि लहुम अशबह बिही मिनल गुराब बिल गुराब, यानी मुराद ये है कि एक कौवा अपने बाप कौवे के जैसे मुशाबे होता है, एक कौवा अपने कौवे के साथ मुशाबे होता है, ये इसके बच्चे तो इसके अब्दुर्रहमान के इससे ज़्यादा मुशाबत रखते हैं। तो मुराद ये है कि जो तुमने शिकायत लगाई है ये झूठी है, इसकी झूठे तुम्हारा झूठ तो यहाँ वाज़े हो रहा है कि तुम कहते हो ये नामर्द है, हालांकि इसकी औलाद है। बाबु सियाबिल बीज़, सियाबुलबैज़ी, सफ़ेद कपड़ों का बयान। अब यह कहते हैं कि रई तो बिशमाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व यमीन ही रजुलैनी अलैहिमा सियाब बैदुन यौम उहद। उहद के दिन मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं बाएं दो आदमी देखे, उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। वमा रई तो हुआ कबलू वला बादू, इससे पहले और इसके बाद कभी नहीं देखे थे। वो फरिश्ते थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए आए थे। अतई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि सोबुन अबजन व हुवा नाइमुन, मैंने आप सल्लम की खिदमत में आया तो आप सल्लम को मैंने देखा कि सफ़ेद कपड़ा अपने ऊपर लिया हुआ था और आप आराम फरमा रहे थे। सुम्मा आते तो वक़द इस्तयक़ज़ा, दोबारा आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो चुके थे। फ़क़ाल मा मिन अब्दिन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह सुम्मा माता अला ज़ालिका इल्ला दख़लल जन्नह, कोई आदमी भी ऐसा नहीं कि जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा हो तो वो मगर ये कि वो जन्नत में दाखिल होगा। कुल्तु व इन ज़ना व इन सरक, मैंने कहा अल्लाह के रसूल, अगरचे वो ज़िना करे, अगरचे वो चोरी करे, तो आपने फरमाया व इन ज़ना व इन सरक। कुल्तु व इन ज़ना, ये 2-3 दफ़ा ये मुकालमा हुआ और उसके बाद फरमाया व कान अबू ज़र्रिन इज़ा हद्दस बिहाज़ा, यानी हज़रत अबू ज़र्र रज़ी अल्लाहु अन्हु जब बार बार ये बात कर रहे थे व इन रगम व, तो आपने फरमाया व इन रगम अनफ़ु अबी ज़र, अगरचे अबू ज़र की नाक खाक आलूद हो फिर भी ऐसे ही होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जन्नत में दाखिल कर देंगे। काला अबू अब्दुल्लाह, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं हाज़ा इंदल मौत औ कबलुहु इज़ा ताबा व नदिमा, ये मौत के वक़्त है या उससे पहले है कि जब आदमी तौबा कर ले और नादिम हो जाए और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले तो उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंसान अगर ज़िंदगी कुफर पे गुजारता है और मरने से पहले वो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है तो ज़ाहिरी बात है उसका ये कलमा पढ़ना और इस्लाम ले आना ये उसके सारे ही गुनाहों को ख़त्म कर देता है। और दूसरा मतलब ये है कि अगर एक इंसान मुसलमान है और इस तरह के गुनाह सादिर हुए हैं और इसके बावजूद वो फिर तौबा करता है तो जो गुनाहों की सज़ा मिलनी है वो मिलेगी और उसके बाद जन्नत में चला जाएगा। माउज़बत अपनी फ़रक़त बी आज़रबैजान, ये आज़रबैजान एक मुल्क का नाम है। अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अनिल हरीर इल्ला हक़ज़ा, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेशम पहनने से मना किया मगर हाक़ज़ा इतना, व अशारा बी इस्बइही अल्लतैनी तलियानी अबहाम, और जो अंगूठे के साथ जो उंगली मिली हुई है उसके बकदर आप इस्लाम ने इशारा किया कि इस तरह इतनी मिकदार में इसकी इजाज़त है। यानी मर्दों के लिए मामूली सा रेशम, जैसे रेशमी कपड़ा जिसका ताना बाना, वैसे तो कपड़े में 2 चीज़ें होती हैं, एक ताना बाना, सब रेशम का हो तो ये मर्दों के लिए पहनना बिल इत्तफ़ाक़ हराम है। और नक्श व निगार वगैरह अगर कपड़ा किसी और कपड़ा है, कोई और है, रेशम का नहीं है, लेकिन उस पर रेशम के नक्श व निगार वगैरह कुछ थोड़े से कोई बेल बूटे या फूल वगैरह बने हुए हैं जिसकी मिकदार 4 उंगली के बराबर पहुंच जाती है तो उसके हाशिए में कोई हरज नहीं है। 2 उंगली 4 उंगली तक का रेशम पहनना मर्दों के लिए भी जायज़ है। फ़क़ाल फ़ीमा अलैना अन्नहु, यानी आलाम, यानी इस सूरत में कि अल्लमना अन्नहु यानी आलाम, कि हम ये समझे कि आप अलैहिस्सलाम उन निशानात, उन फूलों के बारे में कह रहे हैं जो कपड़े के ऊपर बने हुए हैं, अगर इतना थोड़ा अगर फूल बने हुए हो तो इसमें कोई हरज नहीं। नहनु बिआज़रबैजान अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन लुब्सिल हरी इल्ला हक़ज़ा ववस्फ़ लना बिइस्बइही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियों से बयान किया कि इतनी मिकदार जायज़ है। वरफ़ा ज़ुहैरुल वुस्ता व सबबाता, और ज़ुहैर ने अपनी वुस्ता दरमियानी और उसके साथ वाली उंगली से इशारा किया। और अगली रवायत भी वही है, बिल्कुल मुकम्मल रवायत वही है। फ़अताहु दहकान बिमाइन फ़ी अनाइन मिन फ़िज़्ज़तिन, तो काना हुज़ैफ़तु बिल मदाइन फ़स्तस्क़ा, तो हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि ये हुज़ैफ़ा बिन मदाइन में थे और इतने में हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह का ने बेटे से पानी मांगा तो एक देहाती चांदी के बर्तन में पानी ले आया तो उन्होंने फेंक दिया और उन्होंने कहा कि मैं इसको 2-3 दफ़ा मना कर चुका हूँ लेकिन ये बाज नहीं आता, ये हदीस गुजर चुकी है। कुल्तु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीदन अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला मन लबिसा हरीरन फ़ी दुनिया फ़लन यल्बसहुल्लाहु फ़िल आखिरह, जो दुनिया में रेशम पहनेगा अल्लाह ताला उसको आखिरत में नहीं पहनाएगा। ये भी रवायत वही है, ये भी रवायत हो गया। उसका ला खलाक़ लहू फ़िल आखिरह, उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। कुल्तु सदक़ व मा क़ज़ा,
वमा कज़ब, इन्होंने सच बोला और झूठ नहीं बोला। अबू हफ्स ने अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ नहीं बोला, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही फरमाया है कि जो आदमी रेशम पहनेगा उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। बाबू इफ्तराशिल हरीर, रेशम का बिस्तर बनाने का बयान। वकाला उबैदतुन हुआ कलुब सी ही, हज़रत उबैदा फरमाते हैं ये बिस्तर भी पहनने की मानद ही है। और एक रवायत में नहान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नशरब फ़ी आनियत ज़हब वल फ़िज़्ज़ति अन नाकुल फ़ी व अन लुब्सिल हरीरी वद्दिबाज व अन नजिद सफ़ी। इस जुमला से हदीस की तर्जुमतुल बाब से मुनासबत है। ज़ाहिर बात है जिस पर इंसान बैठता है वो बिस्तरी पर बैठता है, तो इससे भी आपने मना किया। बाब लुब्सुल कसी कहते हैं रेशम के लिबास को, रेशम के लिबास पहनने से मना फरमाया। कानत निसाउ तस्नाहु लिबउलतिहिन्ना मिसल कताइफा यसिफूनहा। वकाल हरीर अन यजीद फ़ी हदीसी अलकसियतु सियाबुन मुज़लियतुन युजाउ बिहा मिन मिस्रिन फ़ीहा हरीरुन। ये एक ऐसा कपड़ा था जो मिस्र से आया करता था। तो फरमाते हैं अबू बुर्दा कहते हैं कि मैंने अली रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि कसी क्या चीज़ है, मल कसीयतु। काला सियाबुन अततना मिन शाम, उन्होंने कहा ये कपड़ा है जो शाम से आता था, और मिन मिस्र या मिस्र से आता था। मुज़ल्लिअतुन फ़ीहा हरीरुन, जो मिस्र से बनता था या शाम से बनता था। और ये मुज़ल्लिअतुन, इसके अंदर जो धारियाँ थीं वो रेशम की बनी होती थी, और इसमें तरंज फ़ीहा अमसालुल उतरुंज वल मैसरा, इसमें तरंज की शक्ल की बेलें बनी होती थीं, बूटियाँ बनी होती थीं। और मैसरा ये एक कपड़ा है जिसे औरतें पहनती थीं। तस्नउहा लिबउलतिहिन्ना मिसल कताइफि यसुफूनहा, ये जिसे औरतें अपने शोहरों के लिए रेशम से बुन कर चादरों की तरह तैयार करती थीं और जर्द रंग में रंग देती थीं। वजलूदुस्सिबा वल युजाउ बिहा मिन मिस्रिन फ़ीहल हरीर, और ये मिस्र से कपड़ा तैयार होकर आता था और इसमें रेशम होता था। ये कह रहे हैं काला जरीर अन यजीद फ़ी हदीसी, तो जरीर यजीद से जो हदीस मरवी करते हैं वो कहते हैं कि इसमें अलकसी वो ऐसा कपड़ा होता है जो मुज़ल्लिअतुन, जिसके अंदर ऐसी धारियाँ होती थीं, युजाउ बिहा मिन मिस्रिन, जो मिस्र से आता था, फ़ीहा हरीर, इसमें रेशम होता था, वल मैसरा, और मैसरा वो ऐसा कपड़ा है, जलूदुस्सिबा यानी जिसके अंदर वो रेशम, सिबा कहते हैं दरिंदों की सी खालें, जिस तरह खाल के ऊपर दरिंदे की खाल के ऊपर से धारियाँ सी बनी होती हैं, इस तरह दरिंदे की खाल को मैसरा कहते हैं। तो इस तरीके से धारियाँ बनी होती थीं। काला अबू अब्दुल्ला कहते हैं आसिमुन अक्सर अस्साहु फिल मैसरा, तो वो कहते हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैसरा की तफसीर में आसिम का कौल अक्सर और ज़्यादा सही है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह फरमाया, अबू अब्दुल्ला से मुराद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, आसिम कौल अक्सर और अस्सा है मैसरा के बारे में, जो इन्होंने कहा कि ये मैसरा वो कपड़ा है जो जानवरों के खाल की तरह की उसके ऊपर डिज़ाइनिंग हुई हो, तो उसको कहते हैं। तो ये मिस्र से तैयार होता था। हानि बिन आज़िम काल नहान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल मयासिरिल हुमुर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सुर्ख रंग के मैसरा और कसी पहनने से मना फरमाया है। व नहाना अनिल कसी, ये रेशम की दोनों किस्में, इससे ये मर्दों के लिए मना है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाई। बाबू माँ युरख़्ख़सु लिर्रिजाई मिन हरीर लिल हुक्क़ति, कितनी मिकदार मर्दों के लिए इजाज़त है कि खारिश, हुक्का कहते हैं खारिश को, लिल हिक्कति, खारिश की वजह से कितनी मिकदार का कपड़ा वो पहन सकते हैं। तो रख़्ख़स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिज़ुबैर अब्दुर्रहमान फ़ी लुब्सि हरीरिन लिहिक्कति बिहिमा, इन दोनों हज़रात को खारिश थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों को रेशम का कपड़ा पहनने की इजाज़त दी कि उसकी वजह से खारिश में थोड़ी सी कमी आती है। अन अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कसानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुल्लतुन सियराउ, रावी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक धारीदार रेशमी कपड़ों का जोड़ा दिया, और
फ़ख़रजतु फ़ीहा, मैं वो पहन के निकला। फ़रअयतुल ग़ज़ब फ़ी वजही, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे में नाराज़गी के असरात देखे। फ़शक़क़तुहा बैन निसाई, तो मैंने उसको फाड़ के अपनी औरतों में तकसीम कर दिया। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर अन्ना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रआ खुल्लतन सयरा तुबाउ, तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह आप इसको ख़रीद लें। एक कपड़ों का जोड़ा था, धारीदार रेशमी कपड़ा। मैंने कहा अल्लाह के रसूल आप इसको ख़रीद लें और पहना करें जब आपके पास वफूद वगैरह आया करें। लो इब्तातहा व तलबसुहा लिलवफ़दी इज़ा अतौका वल जुमुअती, और जुमे वाले दिन उनको पहन लिया करें। काला, तो आपने फरमाया इन्नमा यलबसु हाज़िही मन ला खलाक़ लहु, ये वो आदमी पहनता है जिसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। व अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाअस बअद ज़ालिका इला उमर खुल्लतुन सियारा हरीरन कसाअय्याहु, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रेशमी रंग का, एक रेशमी बना हुआ बेहतरीन चादर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की खिदमत में भेजी। तो फ़क़ाल उमर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कसौतनीहा क़द समिअतुका तक़ूलु फ़ीहा मा क़ुल्ता, क़ाल इन्नमा बअस्तु बिहा इलैका लितबीअहा औ तक्सूहा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज़ किया कि आपने तो ये जोड़ा मुझे इनायत फरमाया, हालांकि मैंने ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है ऊपर कि उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ये तेरे पास इसलिए भेजी है कि तू इसे फ़रोख्त कर दे या किसी औरत को पहना दे, और तक्सूहा, किसी औरत को पहना दे, ये इसलिए मैंने भेजी है, इसलिए नहीं भेजी कि तुम उसको खुद पहनो। अला उम्मे कुलसूम अलैहिस्सलाम बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्दा हरीरिन सेरा, अनस बिन मालिक कहते हैं कि उन्होंने हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी, उनके जिस्म पर रेशमी धारीदार चादर देखी। तो औरतों के लिए रेशम पहनने में कोई हरज नहीं है। बाबू मकान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतजव्वज़ु मिनल लिबासी वल बस्ती, औरतों के लिए जिस लिबास की इजाज़त है उसका बयान। अब ये इंशाल्लाह हम अपने अगले सबक पढ़ेंगे। अल्लाह ताला आपके इल्म में बरकत अता फरमाए। इंशाल्लाह आप इस सबक को अच्छी तरह सुन लें। इंशाल्लाह इसके बाद हम अपने अगले सबक में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।